اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5th کا جو EVS ہے اس کا پیج نمبر 44 ہم آج پڑھیں گے. جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے اور ہیلتھ سروسز. یعنی پچھلے ٹاپک میں جو پچھلا ٹاپک اسی سبق سے ریلیٹڈ ہے، اسی سبق کے متعلق جو ہم نے پڑھا کہ ہیلتھ سروسز کیا ہوتی ہیں، کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے ہیلتھ سروسز، یا کس کی جگہ پر کون کون سی ہیلتھ سروسز، ہیلتھ سہولیتوں کی، یعنی صحت جو ہے، صحت کی سہولیتوں کی ضرورت ہے. تو ہم آج یہی پڑھیں گے کہ کس کی جگہ پر کون کون سی سہولیتیں ہیں، یا کس کی جگہ پر کون سی سہولیتوں کی ضرورت ہے. جو آپ نے پڑھا پچھلے سبق میں کہ اس ہیلتھ سروسز میں انہوں نے ایک ہیلتھ میلہ منایا تھا. اس میں انہوں نے ڈاکٹر کو بھی مدعو کیا تھا، یعنی ڈاکٹر کو بھی انوائٹ کیا تھا، ڈاکٹر کو بھی دعوت دی تھی کہ آپ یہاں پر آئے. اور ڈاکٹر تیار تھا، وہ وہاں آ گیا. انہوں نے اس کو ویلکم کیا، انہوں نے اس کو خوش آمدید کہا. اور اس کے بعد وہ پہلے سیدھا 5th کلاس کے اسٹوڈنٹ سے ڈسکشن کرنے لگا. یعنی 5th کلاس کے اسٹوڈنٹ سے وہ ملا اور انہوں نے اس کو وہاں ہیلتھ سروسز کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے. اور ان سوالات میں کیا انہوں نے پوچھا یہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. The doctor arrived exactly at 2 o'clock. First of all, he met the children of class 5th. The teacher welcomed the doctor and raised his hand. When the doctor signaled, he stood up and sat. یعنی انہوں نے ڈاکٹر نے کیا کہا کہ آپ اپنا ہاتھ اوپر کرو، جس کو جو بھی پوچھنا ہے وہ اپنا ہاتھ اوپر کرے اور ایک ایک کر کے مجھے پوچھے. ڈاکٹر my maternal uncle lives in a village. These days he is in our town for my maternal grandfather. Medical treatment in the hospital. یعنی یہ ایک لڑکا اس میں سے کھڑا اٹھا اور اس نے کہا کہ میرا جو میٹرنل انکل ہے، یعنی ماما جی جس کو بولتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ وہ اس وقت وہ گاؤں میں رہتا ہے. آج کل وہ ٹاؤن میں ہے ہمارے ساتھ. ہمارے میٹرنل گرینڈ فادر اس کے ساتھ ہے. ایک وہ علاج کے لیے ہسپتال میں ہے. اور ہیلتھ فیسلٹیز از ناٹ اویلیبل ان دی ولیجز. یہ اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا جو ہیلتھ سروسز ہے وہ گاؤں میں نہیں فراہم ہوتی ہے، وہ گاؤں میں کیوں نہیں ہے؟ آف کورس دیر آر میڈیکل فیسلٹیز ان دا ولیج. ڈاکٹر جواب دیتا ہے کہ نہیں، بے شک ہیلتھ سروسز گاؤں میں موجود ہیں. سیڈ دا ڈاکٹر ان آور کنٹری دا سینٹرل اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹس پرووائڈ ہیلتھ فیسلٹیز فار آل. یعنی ہمارے ملک میں سینٹرل چاہے ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو، یہاں 2 قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے سینٹرل گورنمنٹ جو اور دوسری گورنمنٹ ہوتی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ. یعنی ایک کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ تمام ملک پر حکومت کرتا ہے. جو سینٹرل گورنمنٹ وہ تمام ملک پر، وہ ان اسٹیٹوں کو بھی آرڈرز فراہم کرتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت. اسٹیٹ گورنمنٹ اسٹیٹ کے اندر ہوتی ہے، وہ اسٹیٹ میں حکومت کرتی ہے. اٹ پرووائڈ ہیلتھ فیسلٹیز ٹو آل. یہ دونوں گورنمنٹ ہیں، سبھی جگہوں پر ہیلتھ فیسلٹیز فراہم کرتی ہیں. دیز فیسلٹیز آر اویلیبل ایٹ آل سائٹس ایز دا ولیج لیول، بلاک لیول، ڈسٹرکٹ لیول، اسمال سٹیز اینڈ میٹروپولیٹن سٹیز. یعنی تمام جگہوں پر. گاؤں میں الگ قسم کی سہولیتیں ہوتی ہیں، شہروں میں بڑے میٹروپولیٹن سٹیز جو ہوتی ہیں، شہر بڑے بڑے شہر جہاں میٹروپولیٹن بولتے ہیں، جو ترقی یافتہ شہر ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ ہیلتھ سروسز ہوتے ہیں. اسمالر سٹیز میں بھی ہوتی ہے. بٹ دیز فیسلٹیز آر ناٹ دا سیم ایوری ویئر. یہ لیکن ایک جیسی سہولیت ہر جگہ نہیں ہوتی ہیں، یہ الگ الگ قسم کی سہولیت وہاں ہوتی. ایز کمپیئر ٹو ولیج، سٹیز ہیو بیٹر اینڈ مور اپ ٹو ڈیٹ میڈیکل فیسلٹیز.
गाँव के मुकाबले में शहरों में बहुत ज़्यादा अच्छी सहूलियतें होती हैं, यानी हेल्थ सर्विसेज जो शहरों में होते हैं वो बहुत अच्छी होते हैं बनिस्बत गाँव से, यानी गाँवों नश शहरन में वारिया असल सहूलियत, वारिया असल फैसिलिटीज़ मुहैया। व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन विलेज आस्कड सीमा। एक शागिर्द यानी वन स्टूडेंट आस्कड, उसका नाम था सीमा, उसने कहा इन प्लेसेस वेयर द पॉपुलेशन इज अबाउट 5000, यानी उसने कहा, सीमा ने कहा कि गांव में किस तरह की हेल्थ सर्विसेज मुहैया होती हैं। डॉक्टर फिर जवाब देता है इन प्लेसेस वेयर द पॉपुलेशन इज अबाउट 5000 देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर। डॉक्टर कहता है कि गाँव के उस जगह जहाँ पर आबादी तकरीबन 5000 होती है, उस जगह पर एक हेल्थ सब सेंटर होता है। यानी जिस गांव की आबादी 5000 तकरीबन 5000 होती है, उस जगह पर गवर्नमेंट एक हेल्थ सब सेंटर फराहम करता। But in hilly or far-flung areas, this facility is provided even for a population of about 3000. लेकिन जो far-flung area, दूर दराज के इलाके, पहाड़ी इलाके, हिली एरिया जो होते हैं, वहाँ पर ये फैसिलिटी सिर्फ 3000 लोगों तक ही महदूद है। जहाँ पर हिली एरियाज में अगर 3000 भी हों तो वो हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ जो हेल्थ सब सेंटर है वहाँ पर वो फराहम होता है, वहाँ पर वो सेंक्शन होता। लेकिन जो टाउनर्स है, जो सिटीज़ है, वहाँ पर 5000 आबादी होनी चाहिए, तो वहाँ पर हेल्थ सब सेंटर दिया जाता है। इन एवरी प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर देयर इज़ वन मेल एंड वन फीमेल हेल्थ वर्कर। हर किसी हेल्थ सेंटर सब सेंटर में वहाँ पर एक मेल और एक फीमेल हेल्थ वर्कर होता है। यानी हेल्थ वर्कर उसको कहते हैं जो डॉक्टरों के साथ काम करते हैं। जिस तरह आप अस्पतालों या इन सब सेंटरों में देखते हैं कि डॉक्टरों के बगैर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो वहाँ काम करते हैं। इंजेक्शन करने के लिए अलग होते हैं, वो ड्रेसिंग करने के लिए अलग होते हैं, वो चिट्ठियाँ वो जो वहाँ उसके लिए अलग होते हैं, उन बेडों की सफाई वगैरह के लिए अलग होते हैं, उनको हेल्थ वर्कर्स कहते हैं। यानी बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स होते हैं। लेकिन जो हेल्थ सब सेंटर्स होते हैं उनमें एक मेल और एक फीमेल हेल्थ वर्कर होता। बोथ ऑफ देम टुगेदर लुक आफ्टर हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज। दोनों उनमें से वो इकट्ठे उन हेल्थ सर्विसेज इन हेल्थ एक्टिविटीज़ की तरफ नज़र रखते हैं। सच एज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड। वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड चाइल्ड आप बोलते हैं जो बच्चे होते हैं, जो माँ होती है, जो बच्चे देने वाली माँ, उनको वो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, एक्स्ट्रा बाकी जो मामलात होते हैं उनके बारे में वो इंफॉर्मेशन या वो हेल्थ सर्विसेज फराहम करते हैं। दस दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू द कम्युनिटी। इस तरह वो बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम जो मकसद होता है ये हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी को पहुंचाने के लिए वो बखूबी निभाते हैं। दे आल्सो लुक आफ्टर द वर्क रिलेटेड टू नेशनल हेल्थ स्कीम। वो जो नेशनल हेल्थ स्कीम मैंने आपको पहले ही बताया, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग स्कीम्स होती हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी अलग अलग स्कीम्स भी होती हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम तमाम स्टेटों पर लागू होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमें सिर्फ स्टेट पर ही लागू, उसी स्टेट पर लागू होती है जिसमें वो स्टेट जिस तरह की स्कीम निकालती है। यानी जो सेंट्रल स्कीम है उसको हम नेशनल स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे मुल्क में लागू होती हैं, इसलिए इसको नेशनल हेल्थ स्कीम कहा जाता है।
They also look after the work of related to national health schemes such as eradication of disease. जो बीमारियां होती हैं उनको ख़त्म करने में जो हेल्थ स्कीम्स हैं, जो नेशनल हेल्थ स्कीम्स हैं, उनके बारे में वो जानकारी फराहम करते हैं, उन पर वो काम करते हैं, लाइक मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड पोलियो। यानी जो बीमारियां हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज़, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस या पोलियो है, जो नेशनल हेल्थ स्कीम्स हैं, वो उस पर काम करते हैं। आर देयर नो डॉक्टर्स टू ट्रीट पीपल इन द विलेजेस? एक बच्चे ने कहा कि क्या डॉक्टर गाँव में नहीं होते हैं इलाज के लिए, लोगों के इलाज के लिए क्या डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं होते? सीमा ने दोबारा क्वेश्चन किया, दोबारा सवाल किया कि इससे हमें यह पता चले कि डॉक्टर कहाँ पर मौजूद होते, किसकी जगह पर डॉक्टर, किन अस्पतालों में, किन सब सेंटरों, किन सेंटरों में डॉक्टर मौजूद होते हैं। यस, इट इज़ करेक्ट। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ ये ठीक है। द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल इन प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर्स। हाँ, इन हेल्थ सब सेंटर्स में डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते हैं, यानी वहाँ पर डॉक्टर तैनात नहीं होते हैं। द हेल्थ वर्कर्स कैन गिव फर्स्ट एड एंड ट्रीट सिंपल एलिमेंट्स। वहाँ जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो क्या देते हैं, जब वहाँ कोई बीमार, वो जो छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं उनके लिए वो फर्स्ट एड देते हैं, और सिंपल जो सादे जो छोटे छोटे एलिमेंट्स वहाँ पर वो देते हैं, वो ट्रीटमेंट अच्छी तरह से, वो जो ख़तरनाक बीमारियाँ उनकी ट्रीटमेंट वो नहीं करते हैं। दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। उन कामों के लिए उनको अच्छी तरह से ट्रेन कराया गया होता है, यानी वो पूरे ट्रेनड होते हैं, वो तरबियत याफ्ता होते हैं, यानी उनको अच्छी तरह से तरबियत दी जाती है इन जो छोटे छोटे वो किस्म के मुश्किलात होते हैं उनके बारे में। आर दे आर नो डॉक्टर्स, अच्छा, दे आर ट्रेनड। आई हैव ए 2-year-old सिस्टर हु इज़ नॉट इल। ये कहते हैं कि मेरी 2 साल की बहन है, हु इज़ नॉट इल, वो बीमार नहीं है। येट माई मदर टेक्स हर टू द हेल्थ सेंटर फॉर वैक्सीनेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बावजूद भी मेरी माँ उसको वक्त पर उस हेल्थ सब सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए ले जाती है। शी हैज़ ए हेल्थ कार्ड टू, उसको एक हेल्थ कार्ड भी है। वाई इज इट सो? आस्क्ड चैमली कहती है कि इसके एक हेल्थ कार्ड है, उस पर वो हेल्थ कार्ड लेके वो सब सेंटर पर जाती है वैक्सीनेशन के लिए। ये क्यों है? वैक्सीनेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। वैक्सीनेशन जो होती है, जिस तरह आज हम कहते हैं कि कोविड के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है, वैक्सीन क्या करता है, ये मदद करता है रेजिस्टेंस बढ़ाने में, जो बीमारियों से लड़ने के लिए इंसानी जिस्म में जो रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस को बढ़ाने में, उसको डेवलप करने में ये मदद करते हैं जो वैक्सीनेशन होती है। बाय वैक्सीनेशन चिल्ड्रन कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टन सीरियस डिजीज लाइक वूफिंग कफ, डिप्थीरिया, टेटनस, मीजल्स एट्सट्रा। जो वैक्सीनेशन होती है, बच्चों में ज़्यादातर वैक्सीन दिए जाते हैं, ज़्यादातर जो इम्बॉर्न से लेकर 10 साल तक बच्चों को ये वक्त पर ये वैक्सीन दिए जाते हैं। इनसे क्या होता है, इनसे ये प्रोटेक्ट रहते हैं, इनसे ये बचे रहते हैं, इनसे ये बीमारियों से बचे रहते हैं। सीरियस डिजीज़ जो होती है, जो कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, उनसे वो बच सकते हैं। लाइक वूपिंग कफ, जो खांसी या डिप्थीरिया या टेटनस या मीजल्स या पोलियो वगैरह, मलेरिया या चिकन पॉक्स वगैरह, उन सबों के लिए जो बीमारियां होती हैं, उन सबों के लिए ये वैक्सीनेशन उनको दी जाती है। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हम सबों को ये वैक्सीनेशन पर ध्यान देना है, या वक्त पर अपने बच्चों को वैक्सीनेशन
दिलवाना है। यानी आज कल जो ये कोविड का जो ये बीमारी है, कोविड यानी कोरोना जिसको बोलते हैं, ये पेंडेमिक बन गया है। क्यों? ये अब एपिडेमिक, इसलिए ये अब आज तो थोड़ा इसकी रेट कम हुई है। तो जब हम वैक्सीन लगाएंगे, जब सारी पॉपुलेशन को वैक्सीन दिया जाएगा तो ये पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा। ये इसलिए वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों को या बड़ों को किस वक्त पर कौन कौन सा वैक्सीन लगाना है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो कल इंशाल्लाह इससे आगे हम पढ़ेंगे कि किसकी जगह पर किस जो प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर के बारे में पढ़ा है। इससे भी छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं या इससे बड़े बड़े सेंटर्स कहाँ पर है, इसके सिलसिले में हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।